Hello students, welcome to Edifly JEE NEET Pragyan batch. As I've told you in the beginning of my class that at the end of each and every chapter, I'll discuss the questions with you all. So today I'm going to discuss Kingdom Monera question from previous years, and whatever topic I've discussed with you in Kingdom Monera, I'm going to discuss with you all today. Okay, so let's begin today's class. First is, let's see the first question. First question says, question है, this is a free living. See the question. This is a free living aerobic non photosynthetic nitrogen fixing bacterium. The question says it's asking about the bacterium. So you have to know that nostoc is cyanobacteria, and most importantly it's a rhizobium, not rhizobium. It stays in a symbiotic relationship. Okay, so nostoc is out from the list. Nostoc is out. We'll see the rest three example: Azospirillum, Rhizobium and Azotobacter. These all are bacteria. Bacteria means they'll help in the nitrogen fixation. That is in agriculture, you can say. This bacteria helpful in agriculture sector. So Azospirillum क्या होता है? Azospirillum is stays with the symbiotic. क्या होता है ये? Symbiotic relationship में रहते हैं, and they are found in the legumes. कहाँ found होते हैं? Legumes. Root nodules कहाँ found होते हैं? Root nodules of legumes. Okay, they are found in root nodules of legumes. So there in the question it is asked about free living. Free living है तो Azospirillum is also out. कौन out हो गए? Azospirillum is also out. Nostoc is out. Rhizobium क्या है? Rhizobium जो है, this also helps in the nitrogen fixation, but they stay in the symbiotic relationship. कैसे होते हैं? Symbiotic relationship में होते हैं, and they are found on the rhizobium is found in the they are not found in the root nodules, they are found in the root surface. Root surface. Okay, they are found in the root surface, which I have told you. Azospirillum symbiotic है and they are found in the root surface. Okay, they are found in the root surface. Very easy. Azospirillum हो गया, nostoc हो गया, और rhizobium क्या होता है? ये भी symbiotic relationship है और they are found in the root nodules of legumes. ओके, नेक्स्ट आ गया, बात करते हैं एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग है. क्या है? फ्री लिविंग एरोबिक है. दैट इज दे रिक्वायर ऑक्सीजन. फोटोसिंथेटिक nitrogen fixing bacterium. Okay, so your option will be option D. That is, your answer will be option D. Okay, and the rest, rhizobium is also not included in free living aerobic non photosynthetic nitrogen fixing bacterium. Chalo, let's see next question. Photosynthetic bacteria have pigments in. जो photosynthetic bacteria है उनका pigments क्या होता है? देखो, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ये जो है ना कलर देते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. फोटोसिंथेसिस जैसे दैट इज इन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक में. और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये सारे कलरिंग पिगमेंट्स हैं प्लांट के. लेकिन जो बैक्टीरिया को जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो है क्रोमेटोफोर. क्रोमेटोफोर इज आर द पिगमेंट कंटेनिंग. क्या होता है क्रोमेटोफोर? क्या होता है? पिगमेंट है कंटेनिंग
क्रोमैटोफोर्स आर द पिगमेंट कंटेनिंग लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स। क्या है? लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स, दैट इज वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड इसीलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स क्या होता है? क्रोमैटोफोर। द रेस्ट ऑफ द थ्री वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प होते हैं, लाइक प्लांट का है। और बैक्टीरिया में क्या होता है? क्रोमैटोफोर। जस्ट सी माई नोट्स, Monera, I have discussed part 1, 2 and 3. Part 1, part 2 and 3, I have divided the kingdom Monera in 3 parts and I have discussed in very details. So just see my notes, then you will get to know whichever questions come in the exam. Okay, chalo, let's see next question. Differences in, question है, differences in gram positive and gram negative bacteria is due to. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बहुत कॉमन डिफरेंसेस है, वो है डिफरेंसेस इन सेल वॉल। क्या है? डिफरेंसेस इन सेल वॉल। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव इज दैट द इट्स मेड अप, you all know that cell wall is made up of peptidoglycan. So what happens in gram positive bacteria? Cell wall is थिक, सेल वॉल थिक होता है। एंड ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? सेल वॉल इज थिन, पतला होता है। एंड ऑल्सो इन ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ओके। चलो, तो डिफरेंसेस जो है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती है बेस्ड ऑन सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया के को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट इज राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। This statement about mycoplasma is incorrect. 4 statements are given. You have to say which statement about the mycoplasma is incorrect, जो सही नहीं है. So let's read the statement. First is they are sensitive to penicillin. They are pleomorphic. They cause disease in plants. They are also called PPLO. See, they are also called PPLO. This is the right statement है. PPLO कहा जाता है. Okay. They cause disease in plants. This is also right. They are pleomorphic. I'll say one thing that mycoplasma जो है, it lacks cell wall. It lacks cell wall. Since they lack cell wall, so it becomes rigid, and that's the reason they are pleomorphic. So this the second option, this is also right. जो फर्स्ट ऑप्शन है, they are sensitive to penicillin, no. सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है? सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो व्हाट हैपेंस देयर इज दैट द पेनिसिलिन बिकम रेजिस्टेंट टू द सेल वॉल। दैट मीन्स दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। द माइकोप्लाज्मा दे आर नॉट सेंसिटिव, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, सेल वॉल नहीं है उसका। तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन मूव, दे कैन चेंज देयर शेप, they can change their shape. ओके, क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है, तो बॉडी जैसा चाहे वैसा मूव कर सकती है। ओके, सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलो डन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, which of the following are found? 4 options are given. One is archaebacteria, second is eubacteria, third is cyanobacteria, fourth is mycobacteria. mycobacteria सबसे पहले आउट है। cyanobacteria ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी नहीं है। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, यूबैक्टीरिया भी नहीं है, यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। तो I have given you the notes of archaebacteria. Then the first line I have given, they are found in harsh environment. They are found in extreme environment, or you can say harsh environment. The very first line of archaebacteria says that they are found in extreme saline conditions.
लेट मी से वन थिंग आई हैव मिक्स्ड। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया का कॉमन एग्जांपल्स क्या था, हेलोफाइल्स था, हेलोफाइल्स था, और नेक्स्ट थर्मोफाइल्स था कि नहीं। मोनेरा में मैंने बनाया था ना आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या था, बैक्टीरिया था, माइकोप्लाज्मा था, क्या था, माइकोप्लाज्मा, देन एक्टिनोमाइसिटिस, ओके, है कि नहीं, हेलोफाइल्स था, थर्मोफाइल्स था, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स आता है, तो हेलोफाइल्स यू नो सॉल्ट लविंग, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, हेलोफाइल्स आर सॉल्ट लविंग, सिंस दे आर सॉल्ट लविंग एंड आर्की बैक्टीरिया के अंदर हेलोफाइल्स आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया होगा। यू बैक्टीरिया में तो हेलोफाइल्स आते नहीं है, हेलोफाइल्स जो है एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, एक्सट्रीम सलाइन, सलाइन मतलब सलाइन मीन्स सॉल्टी, सॉल्टी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्या होगा, हेलोफाइल्स होगा। तो हेलोफाइल्स में का बहुत कॉमन एग्जांपल आर्की बैक्टीरिया के अंदर हेलोफाइल्स आते हैं, सो योर ऑप्शन विल बी ए, सो योर आंसर विल बी ए, that is archibacteria. Okay, let's go to next slide. Next question, which among the following are the smallest living cells? They are the smallest living cells. Next is, they are known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen. These all characteristics, by studying the very first line only you can say mycoplasma are the smallest living cells. सबको पता है mycoplasma, माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, एंड नो सेल वॉल, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट देयर, एंड इवन दे कैन कॉज डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो देखो बैसिलस होगा नहीं, बैसिलस इज ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास भी नहीं होगा तो बीमारी करते हैं, स्यूडोमोनास भी नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। नोस्टोक क्या है, नोस्टोक इज ए साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया है, एंड दे आर सिम्बायोटिक, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो नोस्टोक तो होगा नहीं, तो आंसर इज सी, आंसर विल बी सी। ओके, let's see next question. The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the, ruminant animals में कौन कौन से आते हैं, काउ हो जाएंगे, बफेलो हो जाएंगे, है ना। इनको ruminants क्यों कहते हैं, because what they do whenever they chew their food they can take out the food from the stomach and again they can chew. Okay, they have this property and that's why they are known as ruminant animals. The primitive prokaryotes क्या है, primitive prokaryotes production of biogas, thermoacidophiles क्या करते हैं, they'll stay in extreme temperature they can survive. So ये गलत है। यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है, उसमें तो मिथानोजेंस आते नहीं है, तो यू बैक्टीरिया इज आउट। हेलोफाइल्स क्या है, हेलोफाइल्स है सॉल्ट लविंग है, वो सॉल्ट लविंग है। रह गया कौन, अकेला मिथानोजेंस। तो मिथानोजेंस क्या करते हैं, दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कैसे, काउडंग होता है ना, काउडंग जैसे कि गोबर जो होता है, गाय का गोबर, उसी से क्या होता है, बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, और बहुत लोग बहुत घरों में गांव में जो अफोर्ड नहीं कर सकते एलपीजी, वो खाना इससे बनाते हैं, बायोगैस से। ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला है गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेजमिड्स। जब हम प्लांट किंगडम में चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे आपको कि गोल्डन एल्गी को डेजमिड्स कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इज राइट। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट बैक्टीरिया, ने यू बैक्टीरिया का मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बता दिया था कि यू बैक्टीरिया इज नॉन एज ट्रू बैक्टीरिया। व्हाट दे आर नॉन एज, दे आर नॉन एज ट्रू बैक्टीरिया, उन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, दे आर नॉट फर्स्ट बैक्टीरिया। ओके, सो योर ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी, that is answer is option B. Phycomycetes are known as algal fungi, this is right. Cyanobacteria are also called blue green algae, this is also right.
द अदर नेम फॉर दिस ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे से जाने जाते हैं। यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया, इट्स नॉट फर्स्ट बैक्टीरिया। फाइकोमाइसीट्स क्या होता है, एल्गल फंजाई कहा जाता है। ओके चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथानोजेंस बिलोंग टू, मिथानोजेंस बिलोंग टू क्वेश्चन है यू बैक्टीरिया। मिथानोजेंस ई बैक्टीरिया में बिलोंग करते हैं, आर्की बैक्टीरिया में बिलोंग करते हैं, कि डायनोफ्लैजेलस में, कि स्लाइमोस। स्लाइमोस जो है हम प्रोटिस्टा में पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन प्रोटिस्टा। तो ये तो पहले ही आउट है, स्लाइमोस आउट है। डायनोफ्लैजेलस ये भी हम प्रोटिस्टा में पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा पढ़ने वाले। ओके नेक्स्ट है मिथानोजेंस किस में बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। योर आंसर विल बी आर्की बैक्टीरिया। ओके बिकॉज यू बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा और ये सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं। ओके सो मिथानोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। आपका आंसर होगा, आंसर विल बी बी, आर्की बैक्टीरिया। ओके मैंने एक क्लासिफिकेशन दिया था आपको, लाइक आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं। ओके चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। chromatophores takes part in, question is chromatophores takes part in photosynthesis और growth और मूवमेंट और रेस्पिरेशन। तो क्रोमैटोफोर्स मैंने आपको कहा था, क्रोमैटोफोर्स कहाँ, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और जो क्या करते हैं वो दैट विल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रोथ नहीं होगा, मूवमेंट भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करेंगे। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में बहुत कॉमन डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, सेल शेप भी नहीं, सेल शेप तो सेम ही है, तो उसमें कहाँ से डिफरेंसेस होगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस है उनके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के डिफरेंसेस हम कह सकते हैं। चलो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया, देखो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया, पिगमेंट बोल रहा है इन सम साइनोबैक्टीरिया, दैट विल बी योर ऑप्शन विल बी, देखो हेटेरोसिस जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। बेजल बॉडी भी गलत है, निमेटोफोर्स भी गलत है। अगर आप पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस के बारे में बात करते हैं तो उसका आंसर केवल एक ही होगा, जो पिगमेंट होते हैं, दैट इज क्रोमैटोफोर्स। एक्चुअली क्वेश्चंस जो है ना बैक्टीरिया होना होगा, बैक्टीरिया में होता है, ये क्वेश्चंस है ना थोड़ा मिस्टेक है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन बैक्टीरिया होना चाहिए एंड योर आंसर विल बी क्रोमैटोफोर्स। ओके चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। यू बैक्टीरिया जो है नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया ये सैप्रोफाइटिक फंजाई फंगस का, ये भी गलत है। तो आपका आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया, दे स्टे इन द डिप, बहुत समुद्र के बहुत अंदर रहते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका आर्की बैक्टीरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स आर्की बैक्टीरिया के पढ़ेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके चलो द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज, प्रोटिस्ट तो होगा नहीं बिकॉज प्रोटिस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, that is after kingdom Monera we are going to study this protist. Golden algae no, slime mousse protista का part है, तो your option will be blue green algae, very direct question, that is cyanobacteria are also referred to as blue green algae, so your option will be D. Next question, in eubacteria a cellular component that resembles eukaryotic cells, eubacteria में ऐसा कौन सा cellular component है that will resemble eukaryotic cells, your
ऑप्शन विल बी न्यूक्लियस नहीं होगा यूबैक्टीरिया में, राइबोसोम्स भी नहीं होगा, सेल वॉल भी नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ऑप्शन डी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जो यूकैरियोटिक सेल्स और यूबैक्टीरिया में सिमिलर होते हैं। न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल नो। ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म that grow in highly acidic habitat belong to the two groups. हाइपरथर्मोफिलिक होगा एंड दैट विल गो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट्स। हाइपरथर्मोफिलिक स्ट्राइक करेगा आपका कहाँ? साइनोबैक्टीरिया, डायटोम्स। डायटोम्स तो है नहीं क्योंकि प्रोटिस्टा का है। साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा, प्रोटिस्टा एंड मोसस भी नहीं होगा। मोसस प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे। लिवरवर्ट्स भी नहीं होगा, वो भी हम प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं। सो योर ऑप्शन विल बी यू बैक्टीरिया ना आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में ही तो होते हैं ना। आई मीन किंगडम मोनेरा के ही ऑर्गेनिजम्स हाइपरथर्मोफिलिक। सो इसका ऑप्शन होगा यू बैक्टीरिया एंड आर्की। ओके, चलो। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइट इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ। I have given you the notes of plant disease, that is the disease that is caused by bacteria, plant disease and animal disease. Both of this I have given and I told you to remember all those diseases because question comes from that part only. So bacterial leaf blight of rice is caused by its xanthomonas. Okay, pseudomonas नहीं होता, putida, alternaria भी नहीं होता, erwinia नहीं होता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, so your option will be answer A. Let's see next question. Which one of the following statement about mycoplasma is wrong? This question I have already given you before. It's a repeated question. They are also called PPLO. ये तो सही है। They are pleomorphic, सही है। They are sensitive to penicillin, is the right, is the wrong answer. And they cause disease in plants, this is also right. This is the repeated question actually. इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड क्या होता है बैक्टीरिया में? मेन डीएनए नहीं होता है, नॉन फंक्शनल भी नहीं होता है, रिपीटेटिव जीन। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल, मैंने बताया था ना, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मिड इज द फ्रैगमेंट विच जॉइंस टू जीन्स। नहीं, हम पढ़ने वाले डीएनए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो जीन्स को ज्वाइन करते हैं डेट इज डीएनए लाइगेज, हम पढ़ने वाले हैं आगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एमआरएनए व्हिच एक्ट्स एज कैरियर, ऑटोट्रोफिक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। प्लाज्मिड जो है एक वेक्टर का काम करता है, तो प्लाज्मिड एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का एक पार्ट है दैट विल एक्ट एज द वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया? They are all halophytes, all photosynthetic, all fossils, oldest living, all halophytes. All archaebacteria are not halophytes. That is, all halophytes are not included in archaebacteria. Other organisms are also present. All photosynthetic, no. Some are there which are non-photosynthetic. All fossils, no. They are oldest living beings. बहुत ancient time से वो exist करते आ रहे हैं. So your answer will be option D. Next question, what is true for cyanobacteria? Oxygenic with nitrogenous. Next is oxygenic without nitrogenous, non-oxygenic. देखो क्या होता है, cyanobacteria सबसे पहली बात ऑक्सीजन, they need oxygen for the survival, and nitrogenous means they can fix nitrogen. So your option will be oxygenic. देखो विदाउट नाइट्रोजनस तो होता नहीं है, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग पावर होता है साइनोबैक्टीरिया का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था। नॉन ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजनस, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो योर ऑप्शन विल बी आंसर ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, एपिसोम का डेफिनेशन मैंने दिया, ये भी गलत है। मेसोसोम, मेसोसोम क्या होता है? इनवर्ड फोल्डिंग होता है, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी। राइबोसोम तो नहीं होता है, रेस्पिरेशन, माइक्रोसोम नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा 26 का बी, दैट इज मेसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई, ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल मांग रहा है, जेनेटिक। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए,
नो. ये तो सुगर है, डिओक्सीराइबोस, दिस इज ऑल्सो नो. डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ इकोलाई. इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है. इकोलाई जो है, इकोलाई इज द example of bacteria. This E. coli is basically we use in experimental purpose, in lab purpose. If any one of you are doing a lab experiment, E. coli is very comfortable bacteria which you can work for your lab experiments. Okay, so your option will be option C. C will be your answer. Okay, chalo next question. A few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 105. They belong to थर्मोफिलिक और हॉट स्प्रिंग. और ये तो नहीं होगा, ये तो फंजाई है. थर्मोफिलिक क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर. वो उनका टेम्परेचर कितना होता है पता है? 115 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो वो ग्रो करते हैं. लेकिन ये जो मेराइन आर्की बैक्टीरिया है, जो मेराइन है, दे विल ग्रो at the temperature of 100 to 105 degree Celsius. Okay, so your answer will be A. Next, chromosomes in a bacterial cell can be 1 to 3 in number and देखो chromosomes in a bacterial cell कितना होगा? 1 to 3 and they are asking about what will be the shape of bacterial cell. क्या होगा? shape कैसा होगा बैक्टीरिया का? Can be circular as well as linear within the same cell, always circular, always linear, can be neither circular or linear but never both within the cell. पहला जो है, पहला ऑप्शन, दिस विल रॉन्ग. और ऑलवेज सर्कुलर, बैक्टीरियल सेल हमेशा सर्कुलर होता है. दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया. लीनियर नहीं होता है, लीनियर विल बी रॉन्ग. एंड कैन बी नाइदर सर्कुलर और लीनियर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो योर ऑप्शन विल बी option B is your answer. Okay, so with this I have completed a few questions related to kingdom Monera. If you have any doubts regarding any question, you can ask me, you can comment me in the comment section. Whichever question you have doubts, I'll explain you with proper examples. Okay, and beyond that you have to solve as many questions. Like I have solved minimum 25 to 30 questions. So you have to solve. Go open your textbook and you just purchase any NCERT based or NEET like previous 15-year question paper. Try solving questions on kingdom Monera and clear all your concepts. If you have any doubts regarding any concept, you can email me, you can WhatsApp me, or you can just comment me that ma'am, I need this notes, or this part is not clear. I'll explain to you in details. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.